Hello everyone, welcome to Genic Education. So in the last lecture we were discussed regarding the basics of the three-phase induction motor. So already I told you the main purpose of induction motor is to drive a mechanical load. Okay, so in order to drive a mechanical load I need a torque. Okay, so ultimately the final output of your induction motor is torque, and that torque will drive your mechanical load. Those things we have already discussed in a very neat way, right? So in the today's class we will be discussing the working principle of slip ring induction motor and the equivalent circuit of the three-phase induction motor. So basically I need to develop a torque equation. Okay, so I need to develop a torque equation. So I need to do some mathematical analysis. I need to perform some mathematical analysis. So in order to perform some mathematical analysis, I need to have the expression of power. एंड ओ पावर कहां से आएगा? हम अगर इक्विवेलेंट सर्क्यूट अगर होगा हमारे पास इंडक्शन मोटर का, दैट मीन्स द if I am avail with the equivalent circuit of the rotor, then definitely I can get the expression for power output. From the power output expression I can get the expression for torque. That is my prime target. My prime target is to get the expression for electromagnetic torque produced, correct? So before that, let's discuss regarding the working principle of three-phase induction motor. Earlier I told you in order to produce a unidirectional torque I need to have rotating magnetic field. So also we discussed what are the conditions for rotating magnetic field, and also I discussed the condition for torque production. So those part is already over. Now we will be focusing the working principle of three-phase induction motor. So write down the heading. Working principle of three-phase induction motor. क्या होगा यहाँ पे? What will be the process? What is the first step? Tell me. First step क्या होगा? टॉर्क प्रोडक्शन करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा आप बताओ? वर्किंग प्रिंसिपल correct? So let's discuss about the slip ring induction motor. Suppose this is your starter body. In the starter body, I will apply the excitation. Here the excitation is three-phase input. Correct? And suppose this is your rotor body. Okay. So I have to apply the three-phase input to the starter body. So basically here the arrangement is in such a manner that definitely RMF must be produced. So suppose here number of poles are F. Suppose the number of poles is P, okay, and supply frequency is F. So tell me what is the speed of rotating magnetic field in the air gap due to starter. So basically अगर हम थ्री फेज इनपुट अप्लाई करेंगे तो स्टार्टर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एंड उसका स्पीड क्या होगा? इट विल बी 120 F by P. ओके, व्हाट इज F, व्हाट इज P? ऑलरेडी आई टोल्ड यू, करेक्ट? सो ये है आपका स्टार्टर RMF का स्पीड that will be rotating in the air gap at a speed called synchronous speed. This is nothing but your synchronous speed. कहां पे रोटेट करेगा? इन द एयर गैप रोटेट करेगा. एंड स्टार्टर में क्या होता है? ऑलरेडी आई टोल्ड यू, स्लॉट्स होगा. रोटर में क्या होता है? स्लॉट्स होगा. ओके, सो स्टार्टर RMF मतलब क्या है? स्टार्टर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट ए फ्लक्स. A flux is rotating in the air gap at a speed of synchronous speed.
तो आप बताओ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा फर्स्ट प्रोसेस ये होगा कि यहां पे स्टार्टर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा। एम आई करेक्ट और नॉट? स्टार्टर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा क्योंकि यहां पे फ्लक्स कटिंग हो रहा है, फ्लक्स कट कर रहा है किसको? स्टार्टर वाइंडिंग को। स्टार्टर वाइंडिंग इज एट रेस्ट and flux is rotating at a speed of synchronous speed, so obviously क्या होगा? starter winding में EMF induce होगा। so the EMF expression in the starter winding is given by E is equal to E1 is equal to 4.44 phi m F into number of phase in the starter, so this is the EMF expression। सो ये बेसिकली आपका क्या है? स्टार्टर मैग्नेटिक फील्ड, फाई एस स्टार्टर मैग्नेटिक फील्ड। सो आप बताओ कि ये अगर रोटर है, इनिशियली रोटर इज रोटेटिंग और एट रेस्ट, टेल मी, इनिशियली रोटर इज एट रेस्ट, सो ऑब्वियसली सपोज दिस फ्लक्स इज रोटेटिंग, so what will be the situation? This flux will cut the rotor winding, this rotating field, this RMF, this starter RMF will cut the rotor winding। so कौन सा स्पीड में कट करेगा? ns स्पीड में कट करेगा, तो EMF इंड्यूस होगा कि नहीं? yes, EMF will be induced। so the induced EMF in the rotor will be given by 4.44 phi s, रोटर नहीं होगा, here the EMF induced due to the starter rotating magnetic field of the starter magnetic field, so यहाँ पे phi s ही होगा, F into नंबर ऑफ फेजेस इन द रोटर। आप भूल जाओ वाइंडिंग फैक्टर क्या होता है, भूल जाओ, क्योंकि वाइंडिंग फैक्टर एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, उसका कोई ज्यादा रोल नहीं होगा, दैट इज ए कांस्टेंट। अगर एक बार वाइंडिंग हो गया तो वाइंडिंग फैक्टर चेंज नहीं होता है। एम आई करेक्ट और नॉट? नाउ नेक्स्ट स्टेप, रोटर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ओके। सो रोटर वाइंडिंग का कुछ इंपेडेंस होगा। rotor winding is first of all a closed path or not? yes, it is a closed path, so basically your induction motor is nothing but your induction motor is nothing but your rotating short circuited secondary, see in the transformer two sides are there, primary and secondary, here also two sides are there, that is primary is nothing but your starter and secondary is nothing but your rotor, correct? so in this case rotor is always short circuited, क्योंकि हम ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी में क्या करते थे? लोड कनेक्ट करते थे, इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट करते थे, लेकिन इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर we just short circuited, we treat the secondary as short circuited condition, क्योंकि यहां पे वाइंडिंग होगा, क्लोज लूप होगा, तो ये ऑब्वियसली क्या है? शॉर्ट सर्क्यूटेड है। तो सेकेंडरी एट द रोटर साइड इज जस्ट ए शॉर्ट सर्क्यूटेड। सो ऑब्वियसली एक शॉर्ट सर्क्यूटेड अगर पाथ है, अगर एक क्लोज्ड पाथ है तो करंट फ्लो होगा, यस ऑब्वियसली करंट विल फ्लो। सपोज द करंट इज I2, so the magnitude of current will be how much? E2 is the induced EMF and Z2 is nothing but your what is Z2? Z2 is the impedance of the, write down, it is the impedance of rotor, correct है? R2 plus JX2, correct? so I2 will be the net current, but now my question is what will be the direction of I2? So here EMF induced, meaning definitely here Lenz law will be satisfied. Lenz law must be satisfied. Lenz law must be satisfied. ये जरूर satisfied होना चाहिए, okay? Lenz law must be satisfied. So according to Lenz law, we know that it will oppose the cause by which it produced, right? Lenz law is based upon conservation of energy. Definitely it will oppose the cause by which it is produced. So what is the cause of induced EMF in the rotor? That is the starter rotating magnetic field. Suppose मान लो starter rotating magnetic field is rotating
clockwise direction, in the clockwise direction. Okay, so according to Lenz's law, according to Lenz's law, this must oppose the cause by which it produced. Okay, so E2 EMF कहां पे इंड्यूस्ड हुआ? रोटर में. रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ से एक करंट आएगा, रोटर करंट आएगा. सो ये रोटर करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली इट शुड अपोज द कॉज. सो कॉज क्या है? कॉज इज स्टार्टर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. सो स्टार्टर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज है. इसका मीनिंग क्या होगा? I2 से जो भी फ्लक्स क्रिएट होगा, I2 को लेके जो भी फ्लक्स क्रिएट होगा, यहां पे भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा. कैसे होगा हम लोग डिस्कस करेंगे. होल्ड ऑन. ओके, लेकिन I2 के लिए एक फ्लक्स क्रिएट होगा, दैट इज नथिंग बट योर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. वही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा. ओके, एब्सोल्युटली फाइन. लेकिन अभी क्या होगा? इसको अपोज करना है. किसको अपोज करना है? दिस स्टार्टर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना है. तो अपोज कैसे करेंगे? सी, what is the cause? What is the cause of induced EMF? The cause of induced EMF is nothing but the relative speed between the rotor relative speed between the rotor at standstill and the starter rotating magnetic field at synchronous speed. पहले आप बताओ, केस 1 में रोटर कैसे था? रेस्ट था. तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 0. स्टार्टर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये रोटेट कर रहा था, ठीक है, एंड इसका स्पीड क्या था? n इज इक्वल टू ns. तो अब बताओ इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? ns होगा कि नहीं? अब बताओ इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा? इसका मतलब रोटर का एंड स्टार्टर आरएमएफ के बीच रिलेटिव स्पीड क्या है? ns है. सो ये ns था, इसीलिए ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था E2 से, रोटर में. सो अभी क्या होगा? अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इट मस्ट अपोज द कॉज. सो कॉज क्या है? ये रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव स्पीड इज द कॉज. ये रिलेटिव स्पीड ही इसका कॉज है. ओके ओके, सो रिलेटिव स्पीड के लिए ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था. तो अभी क्या होगा? ये रिलेटिव स्पीड को अपोज करेगा. कैसे अपोज करेगा? ये स्टार्टर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी रोटेट कर रहा है एंड रोटर अभी कहां पे है? स्टैंड स्टिल पे है. तो क्या होना चाहिए? रोटर विल ट्राई टू रोटेट इन विच डायरेक्शन? कौन सा डायरेक्शन में अगर रोटेट करेगा तब जाके रिलेटिव स्पीड कम होगा. आप बताओ. रिलेटिव स्पीड के लिए यहां पे इंड्यूस ईएमएफ आया था. तो अभी क्या होगा? अभी क्या होगा? रोटर विल रोटेट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ स्टार्टर आरएमएफ. मान लो पहले आपका स्टार्टर आरएमएफ क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा था, तो रोटर किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? ऑब्वियसली इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो अभी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? मान लो इनिशियली स्टार्टर आरएमएफ का स्पीड था 1500 आरपीएम. ओके, एंड रोटर स्पीड अभी मान लो 1350 आरपीएम हो गया. तो यहां पे रिलेटिव स्पीड क्या होगा? 150 आरपीएम. पहले क्या था? ओनली ns था, दैट इज 1500 आरपीएम एट स्टैंडस्टिल कंडीशन. लेकिन अभी क्या हो जाएगा? 150 आरपीएम. सो अब बताओ, अभी लेंस लॉ सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं? यस, ऑब्वियसली सेटिस्फाइड होगा. लेंस लॉ सेटिस्फाइड करने के लिए रोटर क्या करेगा? इट विल रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज स्टार्टर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. सो द रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टार्टर आरएमएफ एंड रोटर आरएमएफ विल बी ट्राई टू मिनिमाइज. क्यों मिनिमाइज होगा? क्यों जीरो नहीं होगा? एक्चुअली जीरो होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ दिस रोटर बॉडी, लिसन टू मी केयरफुली, ड्यू टू the inertia of this rotor body, it will never catch the synchronous speed. Because of the inertia of the rotor body, it will just fall behind the speed. So that speed is nothing but your slip speed. Slip मतलब क्या है? आप बताओ. Slip मतलब क्या है? अब suppose you are walking on a straight road and due to some mud in the road, your feet slipped. इसका मीनिंग क्या है? स्लिप मतलब स्लिप मतलब ये नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन कितना लैग कर रहा है. या करेक्ट? एम आई करेक्ट और नॉट? सो
यहां पे स्लीप होगा। स्लीप मतलब स्टार्टर आरएमएफ का स्पीड क्या था, सिंक्रोनस स्पीड। रोटर बॉडी का स्पीड क्या होना चाहिए, एनएस होना चाहिए। एनएस अगर नहीं होगा तो क्या होगा, लाइक इट्स ए स्लिप। स्लिप मतलब कुछ लैगिंग होगा, सो वही लैगिंग को हम क्या बोलते हैं, स्लीप स्पीड। राइट डाउन, स्लीप स्पीड। स्लीप स्पीड, स्लीप स्पीड इज नथिंग बट द स्पीड डिफरेंस बिटवीन द स्टार्टर आरएमएफ and rotor speed. Suppose the rotor speed is nr and sleep का मीनिंग क्या है, स्लीप स्पीड का परमानेंट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, स्लीप बोलते हैं। स्लीप इज डिनोटेड बाय द वर्ड s, the letter s and it is given by ns minus nr divided by ns into 100. This is your sleep, this is your sleep. तो स्लीप स्पीड क्यों आया, कैसे आया, स्लीप को हम sleep is given by this formula. You already got the point. Now मैंने आपको दूसरा कंसेप्ट भी बताया था कि टॉर्क प्रोडक्शन के लिए मुझे 2 RMF चाहिए। यहां पे बस S RMF दैट इज स्टार्टर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को हम ऑलरेडी यहां पे शो कर चुके हैं, तो मुझे एक दूसरा भी RMF चाहिए, करेक्ट है। तो दूसरा RMF कहां से आएगा, वो रोटर से आएगा। From the rotor RMF, I'll be getting another rotating magnetic field. Correct or not? Starter rotating magnetic field was already there, but in order to produce a torque, I need to have another rotating magnetic field, and in this case, it will be rotor RMF. Okay? So starter RMF and rotor RMF both are there. Correct? So open your notebook and try to see what are the conditions for torque production. हम क्लियरली यहां पे लिख चुके थे, आप नोट से फिर से ओपन करो, क्या लिखे थे आप लोग एग्जैक्टली। तो ये पहला एस्पेक्ट है, थ्रू लेंस लॉ कैसे इंडक्शन मोटर वर्क करेगा, वो चीज हम ऑलरेडी समझ गए, ठीक है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, मुझे टॉर्क प्रोडक्शन के लिए क्या कंडीशन चाहिए था, हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे, वहीं से आप फिर से देखो, ठीक है। वहां पे स्टार्टर आरएमएफ, रोटर आरएमएफ दोनों चीज था, एंड वहां पे स्टार्टर आरएमएफ एंड रोटर आरएमएफ के बीच रिलेटिव स्पीड क्या होना चाहिए, एब्सोल्युटली जीरो होना चाहिए। इसका मीनिंग स्टार्टर आरएमएफ रोटर आरएमएफ का स्पीड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड देयर मस्ट बी ए स्पेस डिस्प्लेसमेंट, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, आप नोट से फिर से देखो। एंड यहां पे हम कैसे रोटर आरएमएफ फाइंड करेंगे, वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्टार्टर आरएमएफ ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन रोटर आरएमएफ कैसे प्रोड्यूस होगा, वो चीज ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। So suppose the rotor winding are also connected in star. मेरा मेन टारगेट क्या है, रोटर आरएमएफ फाइंड करना। मेरा मेन टारगेट है रोटर आरएमएफ फाइंड करना। सो रोटर आरएमएफ के लिए क्या चाहिए, आरएमएफ के लिए क्या चाहिए, स्पेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाउ मच, 120 डिग्री। करंट थ्रू द वाइंडिंग इज 120 डिग्री, टाइम डिस्प्लेस्ड। स्पेस एंगल क्या होना चाहिए, 120 डिग्री। करंट के बीच टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 120 डिग्री। तब जाके एक नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, नेट आरएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रोटर आरएमएफ, ठीक है। सो अब बताओ, यहां पे ऑलरेडी हम स्पेस डिस्प्लेसमेंट कैसे हम सेटिस्फाई करेंगे, फ्रॉम द वाइंडिंग। हम वाइंडिंग को ऐसे प्लेस करेंगे जैसे कि 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल स्पेस एंगल होना चाहिए। सेकंड, ये टाइम डिस्प्लेसमेंट कंडीशन को हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्टर आरएमएफ में अगर 120 डिग्री टाइम शिफ्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली रोटर में भी 120 डिग्री होगा। जैसे कि आप 3 फेज ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी का रिफ्लेक्शन ही तो प्राइमरी में होता है ना।
अगर कपलिंग सर्किट है तो प्राइमरी का रिफ्लेक्शन सेकेंडरी में होगा एंड सेकेंडरी का रिफ्लेक्शन प्राइमरी में होगा। एम आई करेक्ट और नॉट? सिमिलरली यहां पे क्या होगा, ये प्राइमरी में करंट 120 डिग्री टाइम डिस्प्लेस्ड है, इसका मीनिंग सेकेंडरी में क्या होगा, टाइम डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री होगा, रोटर में भी 120 डिग्री टाइम डिस्प्लेसमेंट होगा। एम आई करेक्ट और नॉट? ये सी कपलिंग सर्किट में ऐसा ही होता है ना, प्राइमरी का सेकेंडरी में रिफ्लेक्शन होगा, सेकेंडरी का प्राइमरी में रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, जहां पे हम दिस इज द कंसेप्ट, करेक्ट। सो ऑटोमेटिकली यहां पे करंट का कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा एंड आई विल बी गेटिंग ए रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द रोटर, करेक्ट। सो ये दोनों स्टार्टर आरएमएफ रोटर आरएमएफ दोनों आ गया, लेकिन मेरा क्वेश्चन है स्टार्टर आरएमएफ एंड रोटर आरएमएफ के बीच स्पीड क्या होगा, स्टार्टर आरएमएफ एंड रोटर आरएमएफ के बीच स्पीड क्या होगा। सी सपोज यू आर एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग हियर, इफ यू आर ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो आपको क्या लगेगा, स्टार्टर आरएमएफ इज रोटेटिंग एट ए स्पीड ऑफ, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार्टर आरएमएफ। अगर आप यहां पे हैं तो स्टार्टर आरएमएफ is rotating at a speed of synchronous speed. What is the speed of rotor RMF? What is the speed of rotor RMF? Don't say कि sir NSC होगा. No. You have to give me the logic. I know कि NSC होगा, otherwise operation of 3-phase induction motor is not possible. ठीक है, ये मैं एग्री करता हूं, लेकिन इसका लॉजिक आपको दो, इसका लॉजिक आप दो। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा, सी See, E2 is the induced EMF in the rotor. I repeat, E2 is the induced EMF in the rotor at standstill condition. At standstill condition. Sir, rotor in the normal case it rotates, but why you are taking only the standstill condition? Let's take the EMF induced in the rotor at running condition. ठीक है, ये standstill condition के लिए है। At रनिंग कंडीशन चेंजेस होगा कि नहीं आप बताओ, पहले दोनों केसेस में चेंजेस होगा कि नहीं आप बता दो, चेंजेस होगा कि नहीं। ईएमएफ इंड्यूस तो आई थिंक सेम होना चाहिए ना, टेल मी। दोनों ईएमएफ इंड्यूस वेदर इट विल बी रोटेटिंग वेदर इट विल एट स्टैटिक कंडीशन, दोनों सेम होना चाहिए ना, क्योंकि देखो यहां पे n नंबर ऑफ टर्न्स सेम है, फाई s सेम है, एफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी सेम है, 4.44 कांस्टेंट, तो E2 सेम ही होना चाहिए ना। कि हम यहां पे कोई भी क्वांटिटी को हम चेंज किए, आप बताओ, कोई भी क्वांटिटी सप्लाई फ्रीक्वेंसी हम चेंज किए नहीं किए, नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज किए नहीं किए, ये ऑलरेडी एक बार मैन्युफैक्चर हो गया तो कांस्टेंट है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फाई एस हम स्टार्टर आरएमएफ को चेंज किए नहीं किए ना, 4.44 कांस्टेंट, तो E2 कांस्टेंट ही होना चाहिए। एम आई करेक्ट और नॉट? लेकिन यहां पे एक चीज होगा, जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है दैट इज ड्यू टू द रिलेटिव स्पीड, दैट इज ड्यू टू द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द स्टार्टर आरएमएफ ये एंड रोटर। तो पहले क्या था, रोटर का स्पीड 0, स्टार्टर आरएमएफ का स्पीड ns, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ns माइनस 0 इज इक्वल टू ns। लेकिन रनिंग कंडीशन में क्या होगा, रनिंग कंडीशन में क्या होगा, इट विल बी ns माइनस nr। सी एट रनिंग कंडीशन रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ns माइनस nr होगा। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ns माइनस nr होगा। सो रिलेटिव स्पीड चेंज हो गया, आई एग्री। ठीक है, रिलेटिव स्पीड चेंज हो गया, आई एग्री। तो रिलेटिव स्पीड के ऊपर ईएमएफ इंड्यूस्ड का क्या इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस। ठीक है, तो induced EMF in the rotor at standstill condition और the current in the rotor at standstill condition, उसका फ्रीक्वेंसी पहले क्या था, f था, लेकिन रनिंग कंडीशन में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, we know one formula that is C, we know this formula, am I correct or not? n is equal to 120 f by p, so f क्या होता है, pn by 120, नंबर ऑफ पोल्स कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पोल्स कांस्टेंट है। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर एट रनिंग कंडीशन क्या हो जाएगा,
P by 120 इंटू n को हम क्या लिख सकते हैं? सी व्हाट इज n? व्हाट इज n? n इज नॉट द स्पीड ऑफ द रोटर. अगर n स्पीड ऑफ द रोटर होता तो एट रनिंग एट स्टैंड स्टिल कंडीशन ये f क्या हो जाता? 0 हो जाता. ns इज योर रिलेटिव स्पीड. यहां पे रिलेटिव स्पीड क्या था? ns था. लेकिन यहां पे रिलेटिव स्पीड क्या होगा? ns माइनस nr होगा. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? ns माइनस nr. सो मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हम लिख सकते हैं P इंटू एनएस इंटू एनएस माइनस एनआर डिवाइडेड बाय एनएस. ओके, सो P बाय P बाय एनएस, पी एन एस बाय 120 को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी, वहां से देख सकते हो, एंड इंटू एस. ठीक है, इंटू एस. सो रोटर फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट योर slip times the supply frequency. Rotor frequency is nothing but your slip times the supply frequency. This is the conclusion. This is the conclusion. Okay, this is the conclusion. ठीक है, so अभी क्या करेंगे? मेरा टारगेट क्या था? I need to find the relative speed between the starter RMF and rotor RMF. बाय डिफॉल्ट आपका आंसर था सर ये भी ns होगा, सो रिलेटिव स्पीड बिकम 0 एंड टॉर्क प्रोड्यूस होगा. लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है इसमें, कैसे? सी वी नो दैट ns इज इक्वल टू 120 f by p. ns इज इक्वल टू 120 f by p. ओके, और सिंपली स्पीड इज इक्वल टू 120 f by p. सो रोटर का फ्रीक्वेंसी क्या है? रोटर का फ्रीक्वेंसी है स्लिप टाइम्स द फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी बाय एफ. सो ये टर्म आपका सिंक्रोनस स्पीड देगा? नहीं देगा ना. सिंक्रोनस स्पीड इज गिवन बाय 120 f बाय p. लेकिन यहां पे s एक एक्स्ट्रा टर्म है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है. तो आप बताओ रोटर आरएमएफ ns होगा? नहीं होगा. रोटर आरएमएफ ns हो रहा है? नहीं हो रहा है. बट मुझे पता है ns कैसे होगा. यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन के ns कैसे होगा. ठीक है, मेरा लॉजिक समझ में आ रहा है? यहां पे रोटर आरएमएफ का स्पीड क्या चाहिए था? ns चाहिए था. बट स्पीड इज गिवन बाय 120 f by p. ये तो सही है ना, ये गलत नहीं है. एंड रोटर स्पीड एट रनिंग रोटर फ्रीक्वेंसी एट रनिंग कंडीशन क्या लिखते हैं हम लोग? एसएफ लिखते हैं. यहां से आ गया, यहां से पता चल गया. ठीक है, तो वही चीज हम सब्स्टिट्यूट किए. ठीक है, तो ये टर्म एनएस नहीं देता है, एनएस नहीं देता है. ये सिंपली क्या देता है? एस टाइम्स ऑफ एनएस. तो यहां पे एस टाइम्स ऑफ एनएस हो रहा है. सो ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी है. मुझे चाहिए एनएस लेकिन मिल रहा है एस एनएस. सो मे बी ये गलत है या ये गलत है, बट आई एम श्योर दिस इज 100% करेक्ट. ये आपका 100% करेक्ट है. इसमें कोई चांस नहीं है कि ये इनकरेक्ट होगा. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है. तो ये इनकरेक्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ? सिंपली वन वर्ड में लिखना है. सिंपली वन वर्ड, एक कीवर्ड है इसका, वही कीवर्ड आपको लिखना है इन द कमेंट सेक्शन. लेट्स सी, वही कीवर्ड मुझे चाहिए इन द कमेंट सेक्शन. करेक्ट? ओके, सो दिस इज बेसिकली द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर. हम दोनों लेंस लॉ के थ्रू डिस्कस किए एंड टॉर्क कंडीशन से भी डिस्कस किए. ठीक है, ये चीज का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना है. ठीक है, so try to answer this question.
एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए 3-phase slip ring induction motor is owned for 4 poles on stator and 6 poles on rotor. When 3-phase source at 50 Hz is applied to the motor, it will run at option A 1500 rpm, option B 1000 rpm, option C 750 rpm, ऑप्शन डी 0 rpm। ओके, यह है 4 ऑप्शन, आपको टिक करना है कौन सा करेक्ट है। सो ठीक है, 30 सेकेंड्स में टाइम दे रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द रोटर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? 0 rpm। क्यों? फॉर द ऑपरेशन वी नो दैट नंबर ऑफ स्टैटर पोल्स मस्ट बी इक्वल टू number of rotor poles. So in this case, number of starter pole is how much? 4. Number of rotor poles is how much? 6. ये दोनों अनइक्वल है, तो ऑपरेशन पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। अनदर सब्सिडरी कंडीशन आई एम राइटिंग हियर, नंबर ऑफ रोटर फेज may be equal, may be unequal to number of starter phase। फेज कितने भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पोल सेम होना चाहिए, अदरवाइज ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल। इसका रीजन क्या है आप लिखना है, सोचना है, थोड़ा सा सोचो इसका रीजन क्या है, आप थोड़ा सा सोचो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द रोटर। सो इक्विवेलेंट सर्किट क्यों इंपॉर्टेंट है? मुझे टॉर्क इक्वेशन चाहिए, दैट्स व्हाई I need the equivalent circuit of the rotor, because I need to analyze the torque equation, that's why I need to get the mathematical expression for torque equation।
rotor induced EMF is given by 4.44 n phase rotor phi r into F, okay, into kW winding factor of the rotor. This is at standstill. This is at standstill. बट रनिंग कंडीशन में क्या होगा? सिंपली क्या होगा? 4.44 एन फेज, ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट सी सपोज phi 1 इज द स्टार्टर आरएमएफ एंड phi 2 इज द रोटर आरएमएफ. इसका रिजल्टेंट क्या होगा? phi r होगा. ये दोनों रिलेटिव स्पीड सेम है. इसका रिलेटिव स्पीड क्या है? 0 है. दैट मीन्स बोथ आर इन सेम स्पीड. सो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? phi 1 plus phi 2 is phi r. This phi r is nothing but your resultant RMF. Okay. Now at running condition में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. तो स्लिप फ्रीक्वेंसी क्या होगा? स्लिप टाइम्स द फ्रीक्वेंसी इनटू KWR. स्लिप टाइम्स द फ्रीक्वेंसी इनटू KWR. ओके. तो अब बताओ ER क्या होगा? S टाइम्स ऑफ E2 और नॉट. सी ये टर्म में अगर S मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये टर्म, सी ये टर्म में अगर S मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? ER होगा. करेक्ट है. इसीलिए ER इज नथिंग बट योर SE2. रोटर रेसिस्टेंस R2 whether in the standstill condition or in the running condition, ये चेंज होने वाला है? नहीं चेंज होगा. बट रोटर रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल कंडीशन आपका क्या है? X2 इज इक्वल टू J2 पाई FL. करेक्ट. बट एट रनिंग कंडीशन ये चेंज होगा कि नहीं होगा? यस, ऑब्वियसली चेंज होगा. क्योंकि X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. X is directly proportional to F. That's why rotor reactance at running condition will change. That will be SX2. So rotor impedance at standstill क्या होगा? Suppose it is Z2. It is given by R2 plus JX2. Now rotor impedance at रनिंग कंडीशन ये क्या होगा? सपोज मान लो ZR विल बी R2 तो चेंज होने वाला नहीं है. R2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस JX2. सो J इंटू SX2 हम लिख सकते हैं. एंड सिंपली SX2 इज नथिंग बट योर XR. SX2 इज नथिंग बट योर XR. ओके. नाउ कम टू द रोटर करंट. Already I told you, suppose the induced EMF is E2. Suppose the induced EMF is E and the impedance seen by the induced EMF is Z. So rotor current क्या होगा? I2 will be E2 by Z2 at standstill. So rotor current at running condition will be ER by ZR. ER क्या होगा? ER क्या होगा? That will be SE2. and ZR क्या होगा? R2 plus JSX2. Am I correct or not? Tell me. IR is nothing but the rotor current. According to Ohm's law, I is nothing but potential divided by the impedance or resistance. So this is the condition for running at standstill condition. Sorry, running condition. At running condition. Okay. So what will be the equivalent circuit of the rotor? Tell me. The equivalent circuit of the rotor is nothing but, suppose this one is R2, this is X2 and this is the induced EMF E2. तो ये क्या हो जाएगा? Simply this is I2. So ये इक्विवेलेंट सर्किट कब का है? At स्टैंड स्टिल.
at standstill. So what will be the equivalent circuit of the rotor at running condition? ये क्या हो जाएगा? R2 SX2, ये है आपका SE2. दिस इज योर IR, करंट एट रनिंग कंडीशन, रोटर करंट एट रनिंग कंडीशन. ओके, फाइन, एवरीथिंग इज फाइन. Am I correct or not? Everything is fine. No problem. No problem. My target was to draw the equivalent circuit of the rotor at running condition. क्योंकि नॉर्मली रोटर सर्किट क्या होगा, ऑब्वियसली हम रनिंग कंडीशन में ही फाइंड करेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, आई हैव टू ड्राइव मैकेनिकल लो, टार्क प्रोड्यूस होना चाहिए. टार्क कब प्रोड्यूस होगा? एट रनिंग कंडीशन ही प्रोड्यूस होगा, एट रनिंग कंडीशन ही प्रोड्यूस होगा. So this is the equivalent circuit of the rotor at running condition. All of you satisfied? Are you happy with this equivalent circuit? But I am not happy. Why? Because the source is variable one. The source is variable one. I don't want a circuit having variable source. So I need to convert into a constant source. तो कैसे करेंगे? इसको थोड़ा मैथमेटिकली मैनिपुलेट करेंगे तब जाके होगा. So यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? IR is equal to, मुझे कांस्टेंट जो सोर्स चाहिए ना, मुझे कांस्टेंट सोर्स चाहिए, तो न्यूमरेटर को बाय एस कर दिए, डिवाइडेड बाय एस कर दिए. तो डिनोमिनेटर को भी हम डिवाइडेड बाय एस कर देंगे, R2 बाय एस प्लस JX2. तो ये क्या हो जाएगा? E2 बाय रूट ओवर ऑफ R2 बाय एस होल स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर. ओके, दिस इज द करंट एट रनिंग कंडीशन. ओके, so now draw the equivalent circuit. I need to draw the equivalent circuit. Okay, so resistance converted to R2 by S, resistance converted to R2 by S, and this is nothing but your X2. so ये क्या है आपका कांस्टेंट सोर्स, दैट इज I2, एंड ये है आपका IR. so this is the appropriate equivalent, नहीं, this is the most preferable representation. ठीक है, this is your one of the most preferable representation. लेकिन मुझे ये इक्विवेलेंट सर्किट के थ्रू बहुत सारी चीजों को प्रेजेंट करना है, बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करना है. तो क्या रिप्रेजेंट करूंगा? यहां पे X2 इज नथिंग बट योर लीकेज रिएक्टेंस. लेकिन मुझे एक चीज चाहिए, रोटर सर्किट अगर है तो रोटर कॉपर लॉसेस जरूर होगा, रोटर कॉपर लॉसेस जरूर होगा. एंड रोटर में क्या होगा? रोटर का शाफ्ट में अल्टीमेटली मुझे मैकेनिकल आउटपुट भी चाहिए. सो वही मैकेनिकल आउटपुट का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा वो मुझे फाइंड करना है. लेट मी रिपीट यू वंस अगेन. in an induction motor, the output quantity is mechanical power output. Correct? So I have to represent that mechanical power output to its equivalent electrical form. Correct? So this is the equivalent circuit. From this equivalent circuit, I need to represent the equivalent electrical. See, I need to represent the mechanical output to its electrical equivalent form. करेक्ट है? तो रोटर सर्किट अगर है, रोटर का लीकेज रिएक्टेंस रहेगा, रोटर कॉपर रेसिस्टेंस, सी रोटर कॉपर लॉसेस रहेगा. इसका मीनिंग क्या है आप सुन लो थोड़ा. X2 कंपल्सरी रहेगा, R2 कंपल्सरीली रहेगा. तो रेस्ट टर्म क्या है? रेस्ट टर्म क्या बचा है? सी R2 बाय एस से R2 चला गया तो क्या बचा है? R2 बाय एस माइनस R2. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? R2 इंटू 1 बाय एस माइनस 1. ओके, सो इसको मैं क्या कैसे रिप्रेजेंट करूंगा आप देख लो थोड़ा. ये है R2, कॉपर लॉसेस होगा,
ये लीकेज रिएक्टेंस होगा, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज योर E2, दिस इज योर IR, दिस इज योर IR। अभी हम क्या करेंगे, रेस्ट जो बचा है, रेस्ट जो बचा है, क्या बचा है, R2 इंटू 1/s-1। तो ये क्या होगा, दिस इज योर मैकेनिकल आउटपुट टू इट्स इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल फॉर्म, to its equivalent electrical form. This is the mechanical, this represents the mechanical output to its electrical form. Okay, are you satisfied with this? Are you satisfied with this? So write it down. So write it down. What is the power flow? What are the different powers involved here? अब बताओ, ये अगर ये अगर रोटर है, मान लो ये आपका रोटर है, क्योंकि रोटर के अंदर ही ये सब होगा ना। अब बताओ, ये रोटर है, रोटर के अंदर ही ये चीज हो रहा है, रोटर के अंदर ही ये चीज हो रहा है। यहाँ पे सैफ्ट का एक्सिस है, यहाँ पे ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। ये सारे चीज, ये इक्विवेलेंट सर्किट किसके अंदर है, रोटर के अंदर है, करेक्ट। नाउ अब बताओ, रोटर इनपुट पावर का फॉर्मूला क्या होगा, रोटर इनपुट पावर क्या होगा। ऑब्वियसली रोटर इनपुट पावर को हम सपोज PG से डिनोट करेंगे, तो क्या होगा, I² इंटू R। R मतलब टोटल रेसिस्टेंस, R मतलब यहां पे टोटल रेसिस्टेंस होगा। सो इट विल बी हाउ मच, IR² इंटू R2/S। डोंट कंफ्यूज कि सर यहां पे 3 मल्टीप्लाई नहीं किए। सी, फॉर एनी 3 फेज सर्किट always we prefer to draw the per phase analysis to avoid the mathematical complexity। चाहे कौन सा भी 3 फेज सर्किट हो, उसका हमेशा पर फेज सर्किट ही हम लेंगे टू अवॉइड द मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी। ओके, सो टोटल पावर क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई कर दो। अगर पर फेज पावर ये है IR² इंटू R2/S है, तो पावर, टोटल पावर क्या होगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। पावर में तो आपका √3 टर्म मल्टीप्लाई नहीं होता है ना, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स, ठीक है। पावर 3 गुना होगा। करंट सी, पावर कभी आप सुने हैं लाइन पावर, फेज पावर? नो, पावर इज पावर। पर फेज पावर अगर 100 वाट है, तो 6 फेज में पावर क्या होगा, 600 होगा। 3 फेज में पावर क्या होगा, 300 होगा, ठीक है। रोटर इनपुट पावर इज दिस मच। रोटर कॉपर लॉसेस भी हो रहा है, मैं बताया था आप लोगों को। रोटर कॉपर लॉसेस PCU क्या होगा, 3 इंटू IR² इंटू R2 ही होगा, ठीक है। लास्ट, दैट इज द मैकेनिकल पावर आउटपुट। राइट डाउन, मैकेनिकल पावर आउटपुट PMAC क्या होगा, क्या होगा यहां पे आप बताओ, 3 इंटू IR² इंटू R2 इंटू 1/s-1। ये जो बचा है यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। राइट नाउ, इसके बीच एक रिलेशंस हमको फाइंड करना है। क्या करना है, इसके बीच एक रिलेशंस हमको फाइंड करना है। क्या है वो रिलेशन, आप बताओ क्या होगा वो रिलेशन। PG is to PCU is to PMAC is equal to how much, क्या होगा, that will be 1C 3IR² सारे जगह हैं, वो कैंसल आउट हो गया, ठीक है, सारे जगह हैं, तो क्या होगा 1/s is to 1/s-1। ओके, S अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 1:s:1 - s। सो PG:PCU PMAC इज इन द रेशियो ऑफ 1:s:1 - s। सो मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको।
in your induction motor the slip ranges from 2 to 8%. It ranges from 2 to 8%. Okay, so copper losses will ranges from 2 to 8% and net will be your mechanical power output. ये अगर 100 वाट पावर दिए यहाँ पे किसमें, एयर सॉरी रोटर में अगर हम 100 वाट पावर दिए, उसके बाद कॉपर लॉसेस क्या होगा, मान लो मैक्सिमम है तो ये क्या हो जाएगा 8 वाट है, रेस्ट पावर क्या होगा 92 वाट विल बी अवेलेबल इन योर शाफ्ट, 92 वाट विल बी अवेलेबल इन योर शाफ्ट. सो राइट डाउन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, यहीं से सिंपली क्लियर ही हो रहा है, इसको लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी PCU plus Pmax is equal to PG. The air gap power or the power input to the rotor is equal to the copper losses in the rotor plus mechanical power. So this is the rotor equivalent circuit and the different types of power available in the rotor and the relations between this power. So it is very important for GATE exam, for ESE exam, for any exam. This formula is very important and in fact 2021 GATE में भी ये क्वेश्चन एक आया था. That question was based upon power flow equation. उसका एक क्वेश्चन था, मुझे उसका आंसर पता है, ठीक है. उसका आंसर क्या आ रहा था, एफिशिएंसी पूछा गया था, 90% एफिशिएंसी आ रहा था. यू कैन क्रॉस चेक इट. ओके, ये क्वेश्चन एक आया था, उसका आंसर 90% आ रहा था, राइट. So now let's discuss another important concept, that is your power flow equation. पावर फ्लो डायग्राम लिखना है, ठीक है. पावर फ्लो इक्वेशन हम सब सिंक्रोनस मशीन में पढ़ेंगे. पावर फ्लो डायग्राम, सो पावर फ्लो डायग्राम क्या होगा, फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट सारे चीज हम डिस्कस करेंगे. सपोज दिस इज द इनपुट पावर टू, कहां पे होगा, इनपुट पावर स्टार्टर पे होगा. ओके, इनपुट पावर कहां पे होगा, स्टार्टर पे होगा. सो स्टार्टर का कुछ लॉसेस होगा कि नहीं आप बताओ. स्टार्टर लॉसेस विल बी देयर. सो स्टार्टर का आयरन लॉसेस होगा प्लस कॉपर लॉसेस होगा. सो ये लॉसेस कहां पे हो रहा है, स्टार्टर पे. कहां पे हो रहा है, स्टार्टर पे. नेक्स्ट, जो भी पावर बचेगा इनपुट से, कुछ पावर क्या हुआ, स्टार्टर लॉसेस से वेस्ट हो गया. रेस्ट पावर जो बचेगा वो कहां पे अवेलेबल होगा, दैट इज योर रोटर इनपुट पावर, और सिंपली हम इसको क्या बोलते हैं, एयर गैप पावर. क्यों एयर गैप पावर बोला जाता है, आप देखो स्टार्टर के बाद क्या आता है, रोटर आता है. स्टार्टर एंड रोटर के बीच क्या आता है, एयर गैप आता है. तो ऑब्वियसली एयर गैप पावर जो होगा, रोटर में भी उतना ही पावर इनपुट होगा. एम आई करेक्ट और नॉट. स्टार्टर एंड रोटर के बीच आपका एयर गैप होता है, तो एयर गैप में जितना पावर अवेलेबल होगा उतना ही पावर रोटर में भी अवेलेबल होगा. तो ऑब्वियसली रोटर पावर इज नथिंग बट योर एयर गैप पावर. रोटर इनपुट पावर इज नथिंग बट योर एयर गैप पावर. सो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, पीजी से. नेक्स्ट क्या होगा, रोटर में भी कुछ लॉसेस होगा. रोटर में कौन सा लॉसेस होगा, यहां पे भी आयरन लॉस होगा प्लस कॉपर लॉस होगा. बट माय क्वेश्चन इज दैट व्हाई आयरन लॉसेस इन rotor is neglected. This is my question. Why iron losses in rotor is neglected? Next,
रोटर पे लॉसेस हुआ, उसके बाद क्या होगा, जो भी पावर अवेलेबल होगा वो क्या बोलते हैं, पीसीयू के बाद जो भी पावर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर। सो वही मैकेनिकल पावर से मैकेनिकल लॉसेस होता है, मैकेनिकल लॉसेस होगा। फ्रिक्शन एंड वाइंडेज लॉसेस क्या है, मैकेनिकल लॉसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन, बॉल एंड बेरिंग फ्रिक्शन प्लस वाइंडेज लॉसेस। वाइंडेज मतलब रोटर किसको ओवरकम करना है, रोटर को, एयर गैप को ओवरकम करना है, एयर गैप में एयर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाइंडेज लॉसेस। सो जो भी पावर मैकेनिकल लॉसेस के बाद अवेलेबल होगा पीमैक, इसके बाद जो भी पावर अवेलेबल होगा वो कहां पे होगा, सैफ्ट में, सैफ्ट में अवेलेबल होगा। एंड यही सैफ्ट पावर क्या करेगा, नेट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, नेट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, दैट T इज इक्वल टू P सैफ्ट बाय ओमेगा। ओके, सैफ्ट, ये सैफ्ट पावर ही टॉर्क में अवेलेबल होगा एंड वो नेट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा एंड रोटर विल बी रोटेटिंग। दिस इज योर पावर फ्लो डायग्राम। फिर से देख लो, स्टार्ट इनपुट पावर, स्टार्टर में लॉसेस होगा, जो भी बचेगा वो कहां पे आएगा, एयर गैप पावर होगा, एयर गैप और रोटर इनपुट होगा, रोटर से रोटर कपर लॉसेस हो रहा है, आयरन लॉसेस 0 है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल पावर जो बचेगा वहीं से मैकेनिकल लॉसेस हो रहा है एंड वही मैकेनिकल लॉसेस के बाद जो भी पावर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सैफ्ट पावर। ये सैफ्ट पावर से टॉर्क प्रोड्यूस होगा कहां पे, सैफ्ट में, एंड इट विल रोटेट द रोटर एंड ड्राइव द मैकेनिकल लोड। ये है आपका कंक्लूजन। दिस इज योर पावर फ्लो डायग्राम, दिस इज योर पावर फ्लो डायग्राम। नाउ लेट्स सॉल्व ए क्वेश्चन, now let's solve a important question. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या होगा बताना है, इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द पावर आउटपुट ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 15 किलोवाट, ठीक है। सो यहां पे Pmax इज इक्वल टू P सेप्ट। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मीनिंग क्या होगा, मैकेनिकल लॉसेस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। So we know the relation Pg is to Pcu is to Pmax is equal to 1 is to S is to 1 minus S। S यहाँ पे 4% है और इसको हम क्या लिखते हैं, 0.04, ठीक है। So the rotor copper losses by mechanical power output is given by S by 1 minus S, which is equal to 0.04 by 1 minus 0.04, so it will be 0.96। so ये क्या हो जाएगा, 1 by 24। so PCU will be Pmax 15 into 1000
डिवाइडेड बाय 24 क्या होगा 15,000 डिवाइडेड बाय 24 6 जा 144 राइट 144 तो 60 आया 24 2 जा 42 12 आया 24 5 जा 625 वाट लेट मी चेक इट वंस अगेन क्या आ रहा है आंसर या 625 watt is the correct answer. This is the correct answer. बहुत ही सिंपल है ठीक है इंडक्शन मशीन इज वेरी सिंपल वन राइट सो एनीवे वी हैव डिस्कस्ड सो फार टिल द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द रोटर मुझे क्यों जरूरी था इक्विवेलेंट सर्किट टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट टॉर्क इक्वेशन तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे टॉर्क इक्वेशन डिस्कस करेंगे मैक्सिमम टॉर्क डिस्कस करेंगे टॉर्क रिलेशंस डिस्कस करेंगे एंड टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे तो बेसिकली हम टॉर्क को ही डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में ठीक है हम लोग टॉर्क को ही डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में एंड उसके बाद हम टेस्टिंग एंड लॉसेस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे जरूर एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर डिस्कस करेंगे एंड स्टार्टिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर भी हम डिस्कस करेंगे ठीक है स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट थिंग आल्सो आई एम गोइंग टू डील इन ए वेरी यूनिक वे करेक्ट सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड ये सारे जो भी क्रॉस क्वेश्चन में किया हूं आपको उसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में ओके सो थैंक यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू